Lecture 08, Social Issues. We have seen the dimensions of family. We have to see the dimension of marriage. Okay. Marriage is nothing but union of two opposite sex, adult, consenting adult. Okay. In classical sense, in traditional sense. Okay. Because the notion of marriage has also changed. Why? Because now we have same sex couple. Okay. So in traditional sense it is union of two opposite sex consenting adult in traditional sense, right? But now same sex couple are also becoming reality. सोशल एक्सेप्टेंस सोशल एक्सेप्टेंस से ज्यादा क्या है, लीगल एक्सेप्टेंस हो चुका है. ठीक है. सोशल एक्सेप्टेंस इज टेकिंग प्लेस बट लीगली इट इज एक्सेप्टेड नाउ. ठीक है. लीगली इट्स एक्सेप्टेड. ठीक है. सो व्हाट इज मैरिज? मैरिज इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन which is performing two major function. What are two major functions of marriage? Number one, it is providing avenue for avenue for gratification of need. What are these need? Sexual, psychological, mental connect, emotional. It is also providing economic support. What is this economic support which is it is providing? Someone is earning wage, someone is cooking, cleaning, and rearing the children. Right. So when two peoples come together for marriage, they need to adjust. Why? To ensure that there is equilibrium in the relationship. This adjustment requires adjustment on both the part. Both adults must adjust. देखो, नौ जब हम लोग मैरिज के बारे में बात करेंगे ना, नॉर्मली वी विल टेक ट्रेडिशनल सेंस ऑफ मैरिज टू अंडरस्टैंड इट. Sense of marriage, to understand it. What is two consenting adult of opposite gender. समझाने में आसान होगा मुझे. ठीक है. चेंजिंग फॉर्म ऑफ मैरिजेस में आ सकता है सेम सेक्स कपल. ठीक है. पर नॉर्मल हम लोग समझेंगे सोसाइटी जो 90% 99% है. ठीक है. तो यहाँ पे एडजस्टमेंट नीडेड है.
Why this adjustment is needed? For equilibrium. First of all, why someone has to adjust? Because a woman, in most of the cases, is leaving her natal home and is entering into a strange household, taking into account that this is an arranged marriage of North India. ठीक है. Plus, the man before this has not played the role of husband. What is the role of husband? The role of husband is to take responsibility and be accountable. Before marriage, what he was? He was playing the role of son, adolescent, teenage, child, infant, right? He has matured, but he has not played the role of a husband till now. So he will have to play that role effectively, and for that, he need emotional adjustment. ठीक है. Certain amount of discipline. That's in his life. देखो, marriage is an example of प्राइमरी रिलेशन. आपको लगेगा कि व्हाट इज प्राइमरी रिलेशन, तो पहले समझो. ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इज इन सोसाइटी. ठीक है. एंड सोसाइटी में एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग से कनेक्टेड है. ठीक है. दूसरे ह्यूमन बीइंग से कनेक्टेड है. दिस सोसाइटी इज नथिंग बट वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप. दिस सोसाइटी इज नथिंग बट वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप. वेब ऑफ social relationship. Social relationship can be divided into can be divided into two aspects or two types. ठीक है. One is primary relations and the second one is secondary relation. ठीक है. So one may ask, what is the difference between primary relation and secondary relation? ठीक है. तो प्राइमरी रिलेशन क्या होता है? It is particularistic in nature. Particularistic in nature. मतलब आपका रिलेशन आपके पापा के साथ पर्टिकुलर रिलेशनशिप है. आपका रिलेशन आपकी माँ के साथ पर्टिकुलर रिलेशनशिप है. आपका रिलेशन आपके सिबलिंग्स के साथ पर्टिकुलर रिलेशन है. इवन विथ योर फ्रेंड्स, इट्स ए पर्टिकुलर इन नेचर. You are not friend with anyone and everyone. You are friend with specific type of people. You like to hang with them. You share certain traits with them. Traits, TRAITS, traits. आपको कुछ अच्छा लगता है उनके साथ, राइट? आपका आपके फादर के साथ एक पर्टिकुलर इक्वेशन है. आपका अपनी माँ के साथ एक पर्टिकुलर इक्वेशन है.
तो उसी तरह आपकी वाइफ के साथ भी आपका एक पर्टिकुलर इक्वेशन होगा. यू कैनॉट टेक योर वाइफ फॉर ग्रांटेड, राइट? So there must be certain amount of particular relationship between you and your wife. ठीक है? It should be particularistic in nature, emotionally involved. ठीक है? Spontaneous. आप अपनी वाइफ से या अपनी गर्लफ्रेंड से सोच के बात नहीं करोगे. ठीक है? Because you are naturally involved with each other, so that relationship will be spontaneous, altruistic. altruistic. अल्ट्रुइस्टिक. अल्ट्रुइस्टिक का मतलब क्या होता है? यू आर डूइंग समथिंग विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. यू आर डूइंग गुड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. ठीक है? तो ये चार चीज प्राइमरी रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं. ठीक है? व्हाट इज सेकेंडरी रिलेशनशिप? सेकेंडरी रिलेशंस क्या होते हैं? स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं. देखो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो काम करने. ठीक है? वहां पे आपके कलीग मिलते हैं. योर रिलेशनशिप विथ योर कलीग्स इज स्टैंडर्डाइज. यू विल विश देम, यू विल ग्रीट देम, you will have work related conversation with them. You will not try to get involved in their personal life. ठीक है? It is unemotional. It is based on contractual in nature. अगर वो आपका भला करेगा तो आप उसका भला करोगे, नहीं भला करेगा तो मतलब खत्म. ठीक है? यूटिलिटेरियन. उसका यूटिलिटी होना चाहिए, कोई पर्पस होना चाहिए. ऐसे नहीं उनके साथ आप कहीं खाने और डिनर पे चले जाओगे, आप ऑफिस मीटिंग में जाओगे, जॉब रिलेटेड स्टफ डिस्कस करोगे. आपका कोई पर्पस होगा मिलने का. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव ए सीए, यू हैव ए लॉयर, यू आर गोइंग देयर टू मीट देम टू हैव ए पर्पस, राइट? प्राइमरी रिलेशनशिप में पर्पस नहीं होता है, स्पॉन्टेनियस होता है. ठीक है? अब प्राइमरी रिलेशनशिप में भी मैरिज जो होता है ना, रिलेशन, even in primary relation, marriage is different from the rest of the relation. Why? क्योंकि मैरिज में जो यूनियन है ना, वो सेक्सुअल यूनियन है. और सेक्सुअल यूनियंस के कारण क्या होता है? डीप इमोशनल बॉन्ड इज फॉर्म्ड. बॉन्ड इज फॉर्म्ड. ठीक है? ठीक है? इसमें क्या होता है? इट बिकम्स वेरी इंटीमेट. इंटीमेसी बहुत ज्यादा होता है. आपके लिए ही जिएंगे, आपके लिए ही मरेंगे. शुरू में तो शादी के 5-6 साल लोग ये कसम खाते हैं. अलग बात है आजकल लोग हनीमून में मेघालय ले जाते हैं एक दूसरे को. ठीक है? सो दिस इज वेरी हाई अमाउंट ऑफ इंटीमेसी इज देयर. आई हैव टोल्ड यू. अब फंक्शन ऑफ मैरिज क्या है? फंक्शन ऑफ मैरिज, देखो आप लोग को अभी जो दो क्वेश्चन आया था ना आपके एस एपी एसएसबी में, वो दो क्वेश्चन आए थे आपके सोशोलॉजी से. एक था सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और दूसरा था सोशल रिलेटिविज्म. तो ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में. सो कीप योर माइंड क्लियर. तो फंक्शन ऑफ मैरिज क्या है? मैंने पहले ही बता दिया. नीड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ
ग्रेटिफिकेशन। ठीक है। दूसरा क्या है? सोशल कंट्रोल। ठीक है। देखो, सोशल कंट्रोल क्या होता है? पीपल दोज हु आर मैरिड, ग्रेटिफिकेशन वाला तो आप समझ गए होंगे, सोशल कंट्रोल। ठीक है। पीपल दोज हु आर मैरिड, दे आर मोर सोशली अटैच टू सोसाइटी। ठीक है। दे शेयर मोर इंटीमेट रिलेशनशिप विद सोसाइटी। ठीक है। वाई दे प्रोवाइड, they share more intimate relationship or more attached to society, more embedded to society. They are more embedded to society because they have responsibility towards their spouse, towards their spouse and future children or children, या तो चिल्ड्रन हो गया या फ्यूचर चिल्ड्रन। ठीक है, होने वाला है। मैरिज इसीलिए तो किए हैं क्योंकि फैमिली भी स्टार्ट करनी है, एंड फैमिली इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। ठीक है। देखो, मैरिज में एक्चुअली होता क्या है, सोशल कंट्रोल क्यों कर रहा हूं? वंस पार्टनर, किसी का पार्टनर इज परफॉर्मिंग वन टास्क, परफॉर्मिंग सम टास्क, सम सेट ऑफ टास्क। ठीक है। जब ये टास्क परफॉर्म कर रहा है तो आर दे एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न? नो, दे आर डूइंग इट प्योरली आउट ऑफ लव, दैट इज अल्ट्रुइज्म। सो जब आपके लिए कोई प्योरली आउट ऑफ लव करेगा, यू विल ऑल्सो बिकम obliged. This obligation is to care for them and listen to their demands. ठीक है। Because of this obligation, one is no longer free, one is no longer free to commit something which is immoral। ठीक है। अब सोशल कंट्रोल आपको समझ में आया, हाउ कम मैरिज इंक्रीजेस द सोशल कंट्रोल। ठीक है। अब देखिए, फैमिली में ना हमारा रोल दो तरह का होता है, हम जिंदगी में दो फैमिली देखते हैं। वी विल सी two family in our lifetime, one where we were born, right? Another family which will make, कुछ लोग सोच रहे होंगे वाह, जिसमें आपका बर्थ हुआ था उसको कहा जाता है फैमिली ऑफ सॉरी, FAMILY, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। ठीक है। और जो मेक करोगे आप, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। ठीक है। इस दोनों के बीच में डिवाइडिंग लाइन क्या है? मैरिज। ठीक है। इस दोनों के बीच में क्या है? डिवाइडिंग लाइन मैरिज है। जो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन था उसमें आपका जन्म हुआ है। ठीक है।
ठीक है। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन में यू वर बॉर्न, यू वर एन इन्फेंट, देन ए चिल्ड्रन, then an adolescent, and then an adult, right? But while you were growing up as an infant, children, and adolescent, you were taught moral values, guideline. How these were taught? But for doing anything good, you were praised. For doing anything bad, you were punished. So, in this very process, the family made your orientation or socialization towards the society. The family was preparing you as an individual who will become fit for the society. ठीक है। मैरिज ऑफ प्रोक्रिएशन कब आया? जब आप एडल्ट हुए, यू गॉट मैरिड। यहां पे जो आपका फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन था, you had role to play, but you had no responsibility in a sense that you were not required to look for clothes, food, shelter, economic need, or provide protection. But in family of procreation, your role has changed. Your role is of husband, wife, mother, father, grandparents, parents. With this comes what? With this comes responsibility. Responsibility. ठीक है। Here you are both breadwinner and caregiver. In family of orientation, you had neither obligation of winning the bread or giving care, right? ठीक है। अब मैरिज, इसको तीन तरह के लेंस से देखा जाता है। सोशियोलॉजिस्ट, those who study society, anthropologist, those who study races, and religious text। ठीक है। In order to study Indian thoughts or views on marriage, we will stick to religious text and sociological study of marriage। ठीक है। ठीक है। बट बिफोर वी प्रोसीड टुवर्ड्स रिलीजियस टेक्स्ट, बेसिकली इसी को डिटेल में पढ़ना है हमें। हिंदू, उनके यहाँ मैरिजेस क्या है? मुस्लिम, उनके यहाँ मैरिजेस क्या है? क्रिश्चियन, उनके यहाँ क्या मैरिजेस है? एंड ट्राइबल्स। ठीक है। उनके यहाँ क्या मैरिजेस है? ठीक है। तो सोशोलॉजिस्ट का क्या कहना है? पहले वो देख लेते हैं। वो छोटा है, ज्यादा समझना नहीं है उसमें आपको। एज पर सोशोलॉजिस्ट, मैरिज इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। मैरिज इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। इन विच मैन एंड women आर एडमिटेड टू सोशल लाइफ। एडमिटेड टू
सोशल लाइफ। ठीक है। ठीक। टू लिव इन इंटीमेट पर्सनल रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ procreation and rearing of children. Why this rearing of children and procreation is necessary? Because society will need future human resource, which is very important. अभी नीदरलैंड में आपको मैं बता रहा हूं, पॉपुलेशन ऐसा ड्रॉप हुआ है और इतनी रैपिड तरीके से ड्रॉप हुआ है कि नीदरलैंड गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर ब्रीडर्स, both male and female, who are willing to have 4 child at least, 4 children, and these will be sponsored by the state. 4 बच्चे स्टेट देखेगा, क्यों? क्योंकि फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। खुश होने की जरूरत नहीं है आपको, हमको नहीं बुलाया है नीदरलैंड। नीदरलैंड इज आस्किंग देयर यंग पॉपुलेशन टू वॉलंटियर फॉर दिस। ठीक है। दूसरा, मैरिज को सोशोलॉजिस्ट कैसे देखते हैं? मैरिज इज सोशली अप्रूव्ड सेक्सुअल यूनियन। इसको सोशल अप्रूवल मिला हुआ है। ठीक है। दिस बिगिंस विथ पब्लिक अनाउंसमेंट। दिस बिगिंस विथ पब्लिक अनाउंसमेंट। ठीक। आप मैरिज करते हो तो शादी के कार्ड छपवाते हो। ठीक है। अंडरटेकन विथ अंडरटेकन विथ आइडिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच इन विच देयर आर रेसिप्रोकल राइट्स। रेसिप्रोकल राइट्स मतलब रेसिप्रोकेटरी, वो राइट्स रेसिप्रोकेटरी इन नेचर है। आप अपनी वाइफ से जो एक्सपेक्ट करते हो, आपकी वाइफ भी आपसे वो एक्सपेक्ट करती है। ठीक है। तो ये वन ऑफ द व्यू इज दैट इट इज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट विथ रेसिप्रोकेटरी राइट्स। ठीक है। एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन द स्पाउसेज एंड देयर फ्यूचर चिल्ड्रन। ठीक है। एंड ऑब्लिगेशन एंड ऑब्लिगेशन between the spouses and future children। देखो, मोहम्मद समी, ठीक है, ही गॉट मैरिड टू नूर जहां। ठीक है। ही वॉज ए मुस्लिम, तो मुस्लिम और वाइफ भी मुस्लिम थी। तो इनके मैरिजेस में क्या होता है, मुस्लिम मैरिजेस में ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। फिर नूर जहां से उन्हें बच्ची हुई, एक बेटी हुई। ठीक है। फिर दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया, राइट। पर जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी था इन प्रोपोर्शन टू हिज इनकम।
Why? Because in future she was going to become mother of his child, and today, since she is mother of his child, the Calcutta High Court has asked Muhammad Sami to provide her with 4 lakh rupees per month to ensure that his daughter receives support in proportion to her father's income. समझ में आया? इसीलिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये अभी जजमेंट दिया है। ये जजमेंट आपको अच्छा लग सकता है, बुरा लग सकता है कि क्यों ऐसा दिया, मोहम्मद समी को उसकी वाइफ ने बदनाम किया। यू माइट बी sympathetic towards Mr. Sami, but the thing is, you will have to understand the rules of law, how they are working। ठीक है? अब इंडियन व्यू ऑन मैरिज देखिए। ठीक है? इंडियन व्यू ऑन मैरिज, इंडियन व्यू में बेसिकली इंडिया में क्या है, 90% ऑफ इट्स पॉपुलेशन at one point of time was either Hindu or influenced by Hinduism। हिंदुइज्म, ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदुइज्म। ठीक है? तो जो इंडियन व्यू ऑन मैरिज होगा ना, हम लोग उसको हिंदू सोसाइटी से देखने की कोशिश करेंगे। लेटर ऑन विल ऑल्सो स्टडी मुस्लिम सोसाइटी, क्रिश्चियन सोसाइटी एंड ट्राइबल सोसाइटी। ठीक है? तो मैरिज, मैरिज एज पर हिंदूज इज डिवाइन, डिवाइन sacrament, this is the term used by sociologists। marriages in hindus is sacramental in nature। ठीक है? why? Because marriage is considered as a duty, it is part of dharma। धर्मा का मतलब होता है ड्यूटी, ये आपका धर्म है कि आप इस देश की सेवा करो, इस समाज की सेवा करो। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता है हिंदुइज्म में। ठीक है? धर्म का मतलब होता है ड्यूटी। ठीक है? यहां तक किसी को डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है? नो। ठीक है? सो इट इज ए ड्यूटी विच एवरी वन मस्ट परफॉर्म, एवरी वन मस्ट परफॉर्म। ठीक है? ठीक। दूसरा क्या है, हिंदू वे ऑफ लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन आश्रम सिस्टम ऑफ लाइफ, इज डिपेंडेंट ऑन आश्रम सिस्टम। क्या होता है आश्रम सिस्टम? फ्रॉम 0 to 25 years of age you are a brahmacharya। ब्रह्मचर्या, इस आश्रम को कहा जाता है व्हाट यू आर, ब्रह्मचर्य। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर लर्निंग एंड गेटिंग नॉलेज एंड स्किल्स। आफ्टर 25 to 50 years of age you will enter into grihast ashram। as a grihast you are expected to procreate the next generation, also you will accumulate wealth through your work, you will do something materialistic, accumulate wealth। okay?
These both things combined are known as काम. कामा. काम का मतलब क्या होता है? काम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सेक्सुअली इंक्लाइंड हो. सैटिएशन ऑफ योर सेंसुअस प्लेजर. सेंसुअल प्लेजर सिर्फ सेक्स नहीं होता है, इट इज ऑल्सो अबाउट, क्योंकि आपको पहनने का शौक होगा, खाने का शौक होगा, घर बनाने का शौक होगा, कपड़ा खरीदने का शौक होगा, धन अर्जित करने का शौक होगा. यू माइट बी आफ्टर accumulation of wealth, that is also a part of sensuous pleasure. ठीक है. You are going for materialistic things. After 50 to 75, वनस प्रथा. वनस प्रथा. You are practicing now डिटैचमेंट. प्रैक्टिस कर रहे हो, अचीव नहीं कर ली हो. ठीक है. यू आर प्रैक्टिसिंग डिटैचमेंट, राइट. आफ्टर प्रैक्टिसिंग डिटैचमेंट, you will move towards sannyasa. Sannyasa. Why? You have to attain moksha, liberation from cycle of birth and death. ठीक है. लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. ठीक है. अब समझ में आया कि मैरिज का तीन पर्पस है एज पर हिंदुइज्म. पर्पस इज, इट्स ए धर्मा, बिकॉज नेक्स्ट जनरेशन आप दोगे. नेक्स्ट जनरेशन कैसे आएगा? प्रजा के थ्रू आएगा. व्हाट इज प्रजा? प्रोक्रिएशन. प्रोक्रिएशन. धर्म, ड्यूटी. ठीक है. और इस दोनों के बीच में है रति. रति इज प्लेजर. जब तक आप अपने सोल को सेटिस्फाइड नहीं करोगे तो मोक्ष कैसे प्राप्त करने की ओर जाओगे? आपको तो अभी भूख लगा ही है. जब तक भूख खत्म ना हो जाए तब तक आप सेटिस्फाइड कैसे फील करोगे? तो उसके लिए प्लेजर, रति. तो धर्म, मैरिज का तीन ही पर्पस है. क्या पर्पस है एज पर हिंदुइज्म? इट्स ए पार्ट ऑफ योर ड्यूटी. यू हैव टू प्रोक्रिएट एंड यू हैव टू गेट सेंसुअल प्लेजर्स. ठीक है. अब देखो, इस्लाम में क्या कहता है, मुस्लिम्स और इस्लाम. मैरिज इज ए फॉर्म ऑफ इबादत. इबादत मतलब प्रेयर. दूसरा, मैरिज इज ऑल्सो सुन्ना. सुन्ना मतलब ट्रेडिशन. ट्रेडिशन किसका? वॉट एवर प्रॉफिट मोहम्मद डिड इन हिज लाइफ, दैट यू मस्ट इम्यूलेट. Prophet Muhammad got married, you should get married. Prophet Muhammad used to keep beards and no mustache, you should also keep no beards and mustache. Prophet Muhammad used to wear a skull cap, you should also wear a skull cap. Prophet Muhammad used to pray 5 times a day, one should also pray 5 times a day. इबादत क्यों है? नेक्स्ट जनरेशन आएगा. नेक्स्ट जनरेशन जो भी आएगा, यू विल रेज देम इन द ट्रेडिशन ऑफ इस्लाम. इस्लामिक ट्रेडिशन में रेज करोगे. इस्लाम इज बेस्ड ऑन 5 पिलर्स. व्हाट आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम? सॉरी, इबादत नहीं. मैं भूल रहा हूँ उस टर्म को क्या बोलते हैं. फेथ. ठीक है. फेथ का मुझे उर्दू याद नहीं आ रहा है.
ठीक है। दूसरा है नमाज। फेथ का उर्दू है ईमान। ठीक है। नमाज। नमाज के बाद है रोजा। फोर्थ है हज। फिफ्थ है जक़ात। यू शुड हैव फेथ ऑन योर रिलीजन, अनसेकेबल फेथ। मुसलमान का मतलब क्या होता है? मुसल्लम ईमान। ईमान, ईमान इज फेथ, मुसल्लम मीन्स समथिंग विच इज एज रॉक, समथिंग विच इज रॉक सॉलिड। ठीक है। नमाज इज यू हैव टू फाइव प्रे 5 times a day. Rosa is you have to do fasting for 29 days during the month of Ramadan. Hajj is that it's obligatory on your part to visit Mecca once in your lifetime by your own money. Zakat is that whatever income you have, 2.5% of it must be donated among your brethren. Who are these brethren? They must be Muslims. They are Ummah. मतलब मुस्लिम किसी भी कंट्री का हो, दे आर आवर ब्रदर्स बिकॉज ऑफ कंसेप्ट ऑफ उम्मा, ब्रदरहुड। ठीक है। और द उम्मत विल इंक्रीज थ्रू इबादत, मैरिज, फॉलोवर्स बढ़ेंगे। समझ में आया या नहीं आया? एमंग क्रिश्चियंस, मैरिज इज डिवाइन एंड among Catholics, no concept of डिवोर्स। ये ट्रेडिशनल व्यू है, आ गया है डिवोर्स का कंसेप्ट आ गया, लेकिन ट्रेडिशनली नो कंसेप्ट ऑफ डिवोर्स। हिंदुइज्म में भी नो कंसेप्ट ऑफ डिवोर्स है, पर डिवोर्स होता है ना बिकॉज ऑफ लेजिस्लेशंस, रूल्स, लीगल सपोर्ट। नाउ इट हैज कम। ठीक है। नो कंसेप्ट ऑफ डिवोर्स। व्हाई? कपल्स टिल डेथ डू अस पार्ट। ठीक है। ये क्रिश्चियन मानते हैं। ठीक है। अब अमंग द ट्राइबल्स क्या है? अमंग द ट्राइबल्स क्या है? देखो, ट्राइबल्स में वेरिएशन है। ठीक है। दे गेट मैरिड बाय पेइंग द ब्राइड प्राइस। दे आर पेइंग द प्राइस। तो यहां पर सेलर और कंज्यूमर हो जाता है। जब ब्राइड प्राइस है तो दे विल, इफ दे हैव मोर मनी दे विल ट्राई टू हैव मोर देन वन ब्राइड। सो पॉलीगैमी। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी दो तरह का होता है। एक होता है पॉलीएंड्री, हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। और एक होता है पॉलीजिनी, GYNY, हैविंग मोर देन वन वाइफ। ठीक है। यह है पॉलीजिनी, वो है पॉलीएंड्री। तो ट्राइबल्स में पॉलीएंड्री भी होता है अमंग द हार्टीज, अमंग द टोडास, अमंग द कोटा। एक अरुणाचल का भी ट्राइब है, पहले उसमें होता था। ठीक है। मैंने कहीं पढ़ा है, पहले उसमें होता था गालोज में, अब नहीं होता है। ठीक है। जॉनसर बावर, जॉन सारी, जॉन सारी ट्राइब ऑफ उत्तराखंड। ठीक है। देखो ये सब जो हो रहा है ना, 100 साल पहले होता था, अब हो रहा है या नहीं हो रहा है बताना मुश्किल है, पर हाटीज में होता है। ठीक है। जॉनसारीज में होता है।
टोडाज एंड कोटाज में होता था, बट विथ स्वीपिंग इन ऑफ मॉडर्निटी दिस माइट हैव गॉन अवे, सेम विद द गालोज। ठीक है। थर्ड, मैरिज बाय प्रोबेशन। द ग्रूम विल go and stay for few weeks at the bride's place. ठीक है। And the parents will decide whether the groom is fit or not for their bride. If it is no fit, that then the party will try to settle it. If fit नहीं है, अब तुम छोड़ दो। ठीक है। Example, among cookies। ठीक है। फोर, marriage by trial। यहां पे ट्रायल क्या होता था? टेस्ट ऑफ फिजिकल कैपेसिटी, फिजिकल कैपेसिटी और ब्रेवरी among Gonds एंड बिरहोर। ठीक है। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? सब कोई बताओ भाई। ठीक है। फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस। फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस। ठीक है। तो क्या क्या है? मोनोगैमी, ये अकेला फॉर्म है विच इज यूनिवर्सल, मोस्ट यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ मैरिज है ये। Anywhere in the world you will find that there are certain society where monogamy is practiced। ठीक है। दूसरा, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी में दो तरह के होते हैं चीज, पॉली जीनी एंड दूसरा है पॉली एंड्री। Polygamy has been banned for Hindus। हो गया? आवाज आ रही है? ठीक है। फॉर्म्स ऑफ, वो नेट चला जाता है कभी कभी। ठीक है। और मैंने देखा है मोबाइल में टावर आ रहा हो, नेट चला जाता है। ठीक है। पॉली एंट्री, पॉलीजिनी बता दिया ना। ठीक है। पॉली एंट्री। ठीक है। थर्ड है आपका फॉर्म ऑफ मैरिज में
लेविरेट, LEVIRATE, लेविरेट, इसमें क्या होता है? एल्डर सिस्टर्स, एल्डर ब्रदर्स, ब्रदर्स वाइफ आफ्टर बिकमिंग विडो, शी इज मैरिड टू younger brother of the husband, of the husband, ठीक है? She is married to younger brother of the husband. This is known as levirate. It is practiced in Haryana and western Uttar Pradesh, ठीक है? फोर्थ होता है सरोरेट. इट इज प्रैक्टिस्ड among नागा गॉन्ड्स, ठीक है? गॉन्ड्स आर ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल इंडिया. सरोरेट में क्या होता है? सिंस द ब्राइड प्राइस इज हाई, इन केस द विमेन डाइज, विमेन मतलब वाइफ डाइज, or she is barren, okay, in that case wife is supplied by the bride's family by marrying their younger sister to her sister's husband. This is known as sororates, ठीक है? Forms of marriage are monogamy, polygyny, polyandry, liberates and sororates. These are forms of marriage, ठीक है? As per Hinduism, Hindus types of marriage. There are 8 types of marriage: Brahma marriage, Dev marriage, DAIVA, Daivya marriage. Third, Prajapati marriage. Fourth, Arsh marriage. Fifth, Rakshasa marriage. Sixth, Gandharv marriage. Seventh, Arsh marriage, Rakshasa marriage, Gandharv marriage. ठीक है? और क्या है? Types of marriage among Hindus. मैं खोज रहा हूँ, जस्ट दीजिए. हाँ, असुरा मैरिज, 8 तो पता ही. पैसाच मैरिज, ठीक हो? ब्रह्मा मैरिज में क्या होता है ना? ग्रूम इज सिलेक्टेड बाय bride's father and marriage ceremony is performed with everything as per tradition and text, religious text, tradition, ठीक है? Dav marriage, the bride's father offers his daughter to the priest who is officiating the ceremony, and bride is given as a feast, ठीक है? For the priest officiating the ceremony. Prajapati, bridegroom is worshipped for his intelligence and knowledge, and bride's hand is given to him and with blessing.
ठीक है, ब्लेस किया जाता है। दैट हियर ऑन थ्रू यू परफॉर्म योर मैरिड लाइफ विथ ऑल योर विशेस बीइंग फुलफिल्ड। अर्स मैरिज, ब्राइड प्राइस इज पेड। इसमें ब्राइड प्राइस बहुत ज्यादा नहीं होता है, इट इज पेड। ब्राइड, अच्छा, इस मैरिज में बार्टर सिस्टम होता है, मैरिज में बार्टर होता है। ब्राइड्स फादर इज गिवन काउज और पेयर ऑफ कैटल्स। इसमें प्राइस नहीं होता है, बार्टर होता है। ठीक है, ये फोर्थ एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ मैरिज है। राक्षस मैरिज में क्या होता है? मैरिज थ्रू एबडक्शन, कैप्चर, गंधर्व। दिस मैरिज इज सोनली डन बाय फीमेल गर्ल एंड adult male who is staying alone purely for the purpose of fulfillment of sexual desire। ठीक है, this does not have consent of the parents but after this they get married and remain couple। असुरा में होता है ब्राइड प्राइस इज गिवन एंड देयर इज नो लिमिट टू अमाउंट, नो लिमिट टू अमाउंट। ठीक है, पैसाचाज में सेड्यूसिंग द वुमन, द ब्राइड, either she is intoxicated, unconscious, intoxicated, अनकॉन्शियस और asleep। ठीक है, इसमें ये चार फॉर्म ऑफ मैरिज एक्सेप्टेबल फॉर्म नहीं है। ठीक है, एक्सेप्टेबल फॉर्म नहीं है। ठीक है, मैरिज में सर्टेन रूल्स भी होते हैं। ठीक है, रूल्स ऑन, रूल्स ऑफ मेट सिलेक्शन। ठीक है, एंडोगेमी ऑफ कास्ट, मस्ट बिलोंग टू द सेम कास्ट। एक्सोगेमी ऑफ गोत्र, that means must not belong to same clan। टेरिटरी, सेम लोकेलिटी या विलेज से नहीं होनी चाहिए। और सपिंड, सपिंड मतलब क्या होता है? शुड नॉट हैव कॉमन एंसेस्टर्स। ठीक है, मतलब लड़का है, ग्रूम, ग्रूम के फादर, फादर से 5 जनरेशन ऊपर तक कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लड़की के फैमिली के साथ। ग्रूम की मदर, मदर से 3 जनरेशन तक कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए ब्राइड की फैमिली तक। तो ब्राइड, ग्रूम के फादर क्या हुआ? 6 जनरेशन, ग्रूम मतलब 7 जनरेशन, तो 7 जनरेशन से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। मदर से ऊपर 3, मदर को इन्वॉल्व करके 4। लड़का तो माँ के लीनेज को नहीं जाता है ना, पिता के लीनेज को जाता है। तो फ्रॉम मदर साइड 4 जनरेशन एंड फ्रॉम फादर साइड 7 जनरेशन कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए ब्राइड की फैमिली से, तभी इसका मैरिज हो सकता है। दीज आर रूल्स ऑफ मेट सिलेक्शन। ठीक है, यही है आपका हिंदुइज्म में। ठीक है, हिंदुइज्म में जो है, इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिव इन इलीट मुस्लिम्स। वो भी तो कन्वर्टेड ही है ना, लेकिन इलीट है तो मेंटेन करता है सारा चीज। और हाई कास्ट क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस में भी ब्राह्मिन्स है, यस। इन गोवा यू विल फाइंड आरसीबीसी, रोमन कैथलिक ब्राह्मिन कास्ट। ठीक है, देयर आर रेड्डी क्रिश्चियंस। ठीक है, तो ऐसा होता है। सो विद दिस, मैरिज एज ए टॉपिक हैज कम टू एन एंड। ठीक है, हम लोग डिवोर्स के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, फैमिली के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है,
किथ एंड किनशिप के बारे में बात कर सकते हैं नेक्स्ट 2 क्लासेस में. आफ्टर दैट विल मूव इनटू सोशल इश्यूज रिलेटेड टू करंट इवेंट. ठीक है. रिलीजन भी देखना होगा थोड़ा सा. ठीक है. सो विद दिस आई विल कंक्लूड द क्लास ऑफ टुडे. इफ देर इज एनी डाउट काइंडली लेट मी नो.